Okay, beta. So in nuclear physics, we are done with the mass defect, binding energy. Today we'll be doing some examples for these two, and then we'll be moving on to next two last topic for this section: stability of nuclei of different elements and nuclear fission and nuclear fusion. So let's discuss some example for mass defect. Mass defect. So we know about the equation of mass defect as sum of masses of protons and neutrons minus mass of their nucleus. Okay, so let's look for an example in which we are going to apply this, and example is carbon 12. So mass of carbon 12. Okay, it's about C12 6. So mass of carbon 12 nucleus is given as 19.9264 into 10 raised power minus 27. Yeah, 19.926483. Oh, 6483. Acha, this is the mass of the nucleus, and then mass of proton and mass of neutron is also given. So you'll have to calculate the mass defect for carbon 12. Find mass defect for carbon 12 nucleus, and you have to use this equation. So mass of proton is 1.6723 2623 into 10 raised power minus 27. Okay, you have to use all these digits. You would not be rounding off them. 4929. So this is the mass of neutron. So you have to find mass defect. ठीक है, चलो जल्दी से ज़रा solve करो बेटा इसे. So in the first part you have to find mass defect, and in second part you have to find amount of energy required to break carbon 12, or energy released when carbon 12 is made, or binding energy of carbon 12. Everything means the same. So uske liye you will be using this formula. Binding energy is mass defect into C square. Okay? And you have to write this answer in joules. First in joules, and then you have to convert this into electron volt or mega electron volt. This will cover up your conversion skill as well. If 1 electron volt is 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. Using this, you'll be converting joule into mega electron volt. Okay beta, so the outcome is very simple कि अगर आपने, if you have to find mass defect, of course you have to use this formula, number of protons into mass of proton plus number of neutron into mass of neutron, which is given over here, minus mass of nucleus. So if it is given in kilogram, it is fine. If it is given in U, then you can find this answer in U and then multiply that with 1.667 10 power minus 27 to convert it into kilogram. So once you get mass defect, binding energy, or like three ways to ask the same question: amount of energy required to break carbon 12, amount of energy released when carbon 12 is being made, or binding energy of carbon 12. Uske liye you will be using delta mc square. Delta m is mass defect, c is speed of light, and you will be getting this answer in joules. Significant figure doesn't matter here. You can write all the answer, or you can round it off to 2 or 3 sig fig as well. Final answer.
And then you are also required to convert this joule into MeV. तो उसके लिए you'll be using this. 1 MeV is 1.6 times 10 power minus 13 joule. तो using ratio method, ठीक है, और dividing this with this, you will get 89.34. It means, what does this mean? कि इसकी binding energy 89.34 है. इसका मतलब क्या है? If you have one carbon 12 atom, nucleus, one carbon 12 nucleus, you want to break it into its separate nucleons, like 6 protons, 6 neutrons separate, you have to invest this much of energy, 89.34 mega electron volt, right? Okay, let's move forward and let's look for the next topic, which is stability of nuclei of different elements. So before we do that, there is another small topic, binding energy per nucleon. What does this mean? Binding energy per nucleon. Acha, before this we can say what is binding energy. We can just recall. Binding energy kya thi? So we say it is energy required to split a nucleus into its separate nucleons, making them infinite apart, infinite distance apart. Acha, this was the way to defining binding energy. This is important to add, making them infinite, place them at infinite distance, moving them away from influence of each other. Acha, how to find binding energy? We are already done with that. It was delta mc square. So this is the way to calculate. Delta m is mass defect of nucleus. And we just did the example how to get this. C jo hai, you know, C is speed of electromagnetic radiation. Acha, this gives you answer in joules, binding energy in joules, but you can always convert that into mega electron volt or kilo electron volt, right? जो अभी हमने किया है. इसके बाद binding energy per nucleon. अभी आप खुद बताओ इसका क्या मतलब होगा. It's very simple. Break or remove. Like if there is, let's say 1 2 3 4 5 6 or फिर 1 2 3 4 5 6. Let's say this is carbon 12, 6 protons and 6 neutrons. So we are required to remove just one neutron from it or one proton from it. ठीक है? Only one, not whole. So if we want to remove one of them, like एक प्रोटॉन को रिमूव करो या फिर एक न्यूट्रॉन को रिमूव करो, तो of course that requires some energy as well. So the energy required to remove only one nucleon from the nucleus is known as binding energy per nucleon. Simple. Why we study binding energy per nucleon? Why it is useful for us? क्योंकि देखो every element is having different nucleon number. किसी का बहुत कम न्यूक्लियन नंबर होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें, अच्छा वाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम देख क्यों रहे हैं? इसका आंसर ये है कि भाई देखो, इफ़ वी लुक अपॉन लेट्स से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर ही हमें यहाँ पे थोड़ी वैरायटी मिलती है. लाइक दिस कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस. सो दिस डजंट हैव एनी बाइंडिंग एनर्जी. वो तो इट इज़ ऑल अलोन. यू जस्ट आयनाइज इट, रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड देयर यू गो, यू जस्ट हैव वन प्रोटॉन. सो वन प्रोटॉन डजंट हैव एनी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वन प्रोटॉन है, वो किसी के साथ तो पेयर्ड ही नहीं है ना. देयर इज़ नो न्यूट्रॉन, देयर इज़ नो प्रोटॉन. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, so what we say, there is one proton and one neutron. What about this? There is one proton and two neutrons. So it means that these hydrogen H21, H31 is having binding energy,
राइट, लेकिन इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी. वाई? बिकॉज देयर आर ओनली 2 न्यूक्लियॉन्स, देयर आर ओनली 3 न्यूक्लियॉन्स. बट इफ वी टॉक अबाउट यूरेनियम 235 92, so what about uranium? In uranium 92 protons are there and this minus this is how much? 1 4 3. So 143 neutrons are there. तो देखो this इसकी फिर बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए because it is having too many nucleons into it. Then similarly we have iron Fe56 and how much is it? 26. तो इसमें क्या है, इन आयरन वी हैव 26 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स. सो I have written several examples. All of them have different nucleons number, different number of protons and neutrons. It means their binding energy will be different. So if we want to compare them on same scale, so we will say okay, compare them on a scale in which we have to look for binding energy of one nucleon only one nucleon, because all of them have one nucleon at least in them, like one at least, like 2 are there, but we can say okay, all nucleons have at least one nucleon. इन सब में से आप एक nucleon एक एक निकाल सकते हो. तो if we want to compare their stability, कि how stable they are या how difficult it is to remove one nucleon from each, then we use this term binding energy per nucleon. So this tells us something about, this term tells us something about stability of nuclei. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई. हाउ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, अब आप देखो इस कैसे पता लगेगा इससे. लेट्स से इफ आई से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम आयरन, वेरी डिफिकल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी. और अगर मैं कहूँ इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम यूरेनियम 235, like it requires huge amount of energy to remove one nucleon from iron, it requires little amount of energy to remove one nucleon from uranium. तो इस statement से what you can infer about stability of these two? Iron is more stable, मतलब वो ज़्यादा strong है. More stable mean it is more stronger. That's why it requires lot of energy to remove only one nucleon from iron. अब उसकी रीज़न क्या है, इसकी और रीज़न ये है कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, और वो इतने होते हैं कि जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो उन सब के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट वे में एक्ट कर रही होती है. और ये जो है ये लीस्ट स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वही जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसने भाई 235 न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखना है. एक ही फोर्स है जो 56 को होल्ड करके रख रही है, और वही अमाउंट ऑफ फोर्स है जो 235 को होल्ड करके रखे हुए हैं. तो ज़ाहिर है 235 वाला फिर कम होगा ना, उसमें ये होगा कि हम आराम से उन न्यूक्लियॉन्स को जो है वो अलग निकाल सकेंगे. और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे है कि अगर लेट्स से हम एक एक्टिविटी करें, उसमें ये हो सकता है कि हम वो जो मार्बल बीड्स होती हैं वो ले आएँ, ठीक है, और कुछ ग्लू ले आएँ, और हम उस ग्लू को फिक्स अमाउंट में रखें कि भाई देखो हमने 2 न्यूक्लियस बनाने हैं, आपके पास ग्लू की फिक्स अमाउंट है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है. लेट्स से 10 ग्राम ग्लू एक में, 10 ग्राम दूसरे में, लेकिन एक में आपके पास मार्बल बीड्स कितने हैं, 56, और दूसरे में कितने हैं, 235. तो 10 ग्राम से आपने 56 को कनेक्ट करना है, और 10 ग्राम से आपने 235 को कनेक्ट करना है. तो 235 भी कनेक्ट तो हो जाएंगे, बट उसमें एक प्रॉब्लम होएगा. वो क्या, कि आपने हर मार्बल को कनेक्ट करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लू यूज़ की हुई है. तो इसलिए जब ये करने के बाद अगर हम कहें कि अच्छा अब आप इसको बन गया, ठीक है, आयरन बना दिया आपने, यूरेनियम बना दिया, अब ज़रा आप ऐसे करो, एक एक न्यूक्लियस अलग करके दिखाओ, एक एक न्यूक्लियॉन अलग करके दिखाओ. तो जब आप आयरन को करने लगे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, शायद आपसे ना हो, फ्री हैंड से ना हो. क्यों? क्योंकि ग्लू ज़्यादा है उसके लिए, 10 ग्राम 56 न्यूक्लियॉन्स के लिए ज़्यादा है, तो स्ट्रांगली जो है ना ग्लू बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो वो बहुत स्ट्रांग है उनका बॉन्ड. तो आपसे नहीं हो रहा, आप कहोगे भाई हमें हैमर चाहिए, आप हैमर से करोगे, फिर आप कहोगे नहीं हो रहा, अब मुझे थोड़ा बंसन बर्नर चाहिए, फ्लेम से मैं थोड़ी ग्लू मेल्ट करूं तब मैं इसको निकालूं, तब वो उतरेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद. यूरेनियम का ये होगा, थोड़ी सी ग्लू लगी होगी, आप पकड़ोगे, थोड़ा सा जोर लगाओगे, आप साइड पे कर लोगे, ये लें जी हो गया. सो दिस टेल्स अस
अबाउट स्टेबिलिटी. सो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये हम इसलिए दिए हैं कि भाई वी हैव टू स्टडी दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई. तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? तलाल आपने नहीं बोलना, कोई और बताएगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? रिलेशन डायरेक्ट या इनवर्स? हाँ, क्यों भाई? डायरेक्ट होगा. डायरेक्ट होने का मतलब क्या है? डायरेक्ट होने का मतलब यह है कि वी से कि स्टेबिलिटी जो होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. सो वी से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, इफ़ यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव वन न्यूक्लियन, इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी. हाँ, यही है ना? तो दिस मेक सेंस कि ऐसे ही होएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. ये आपको समझ आ गया? बस इसका यही कॉन्सेप्ट ही है, बस ये समझना है. फिर इसके थोड़े से ग्राफ वगैरह बनाते हैं और इसको फिनिश अप करते हैं. अच्छा जी, तो लेट्स राइट अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. Nuclear stability means that amount of difficulty to remove one to remove nucleons from a particular nucleus refers to nuclear stability. Means how difficult is it to remove or add nucleons into a nucleus. ये इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है. अच्छा, जो आयरन है ना, आयरन 56 इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट और न्यूक्लियस वट एवर. आयरन मोस्ट मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. फहद? या ओके. अच्छा, तो अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं? सब फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. एक तो नंबर वन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक फैक्टर जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. ऑफ कोर्स दिस इज़ वन फैक्टर विच वी हैव ऑलरेडी लुक्ड अपॉन कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम अ न्यूक्लियस. ठीक है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और इसको निकालना हो तो हम डेल्टा एम सी स्क्वायर ओवर न्यूक्लियन नंबर जो ए होता है इससे हम निकालते हैं. दिस इज द इक्वेशन. मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर हम करते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. तो यू कैलकुलेट टोटल बाइंडिंग एनर्जी by calculating mass defect, multiplying it with c square, and then you divide with the nucleon number of that nucleus or element. अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो जूल जूल तो नहीं, खैर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और या जूल में भी लिख सकते हैं. खैर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स. Okay, this is first factor. Second factor is half-life.
बल्कि नहीं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम बाद में ही करते हैं. So we are just looking upon one factor at the moment, and which is binding energy per nucleon. सर एक है. हाँ, एक है. A जो है this is nucleon number. A is nucleon number of element. और A क्या होता है? Sum of protons and neutrons. अच्छा, देर इज़ अनदर फैक्टर, लेकिन वो अभी हमने अगला रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर टॉपिक करना है उसमें फिर डिस्कस करेंगे. अभी बताया फिर आपको नहीं समझ आएगा. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक ग्राफ. इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व. यू नो व्हाई वी मेक ग्राफ? वी मेक ग्राफ सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट अ टाइनी स्पेस. ठीक है, सो इसके लिए जो ग्राफ हम बनाएंगे उसमें what will we do, along x-axis will be nucleon number and along y-axis will be binding energy per nucleon and its unit will be MeV. Acha, we know that there are like around 135 to 140 elements now. So we have to plot a graph for all of them. So usually there are two types of shapes. Shapes ज़रा सी different हैं. Two shapes हैं, लेकिन उनमें से मैं पहले अभी एक बनाता हूँ. So the first one is, it goes like this. चलो ठीक है, I can extend this to there and maybe yeah, this looks better. अच्छा, ये अब एक स्टैंडर्ड शेप है, स्टैंडर्ड ग्राफ. इट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, राइट? इसमें we have to look for certain points, 3 points. 1 is this point, 2 is this point, and 3 is this point. So number 2 is special. Why? Because it is peak. And as it is peak, it means here is maximum binding energy. Right? And I already told you that iron is the most stable one. So you can guess that which एलिमेंट इज ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस. पीक पे कौन सा एलिमेंट होगा? आयरन होगा, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है. सो यहाँ पे बेटा आयरन होगा, आयरन 56. एंड वन थिंग, हम यहाँ से नीचे एक्स एक्सिस पे आएंगे तो हम कहेंगे ओके हियर इज 56, बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमें क्या लगाना है? एक्स एक्सिस पे हमें न्यूक्लियन नंबर लिखना है. तो आयरन मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हमने यहाँ 56 लिख दिया. राइट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी नो कि जो हाइड्रोजन है H1, हाइड्रोजन H1, H12, H13, वो अब यहाँ पे ये इस जगह पे आ रही है. ये दिस इज लाइक हाइड्रोजन. उसका कोई भी आइसोटोप हो सकता है, 2131, राइट? और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो हीलियम आ जाएगा यहाँ पे, He42 या 32 कुछ भी आ सकता है, राइट? सो ये हाइड्रोजन आ गया 21 और ये हीलियम आ गया. इसी तरह बाकी एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, जो मोस्ट फेमस है हमने वही लिखने हैं. या हाइड्रोजन लिखेंगे, हीलियम, आयरन या फिर यूरेनियम. अब देखो यूरेनियम जो है वो क्या होता है? यूरेनियम इज 23592. इट्स न्यूक्लियर नंबर इज 235. इट मस्ट बी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द हैवियर और हैवीएस्ट एलिमेंट्स. यूरेनियम जो होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियर नंबर कितने? 235. अब 235 एंड पे अप्रॉक्स भी आ सकता है, या वो आपसे 2 स्केल भी करवा सकता है. 2 स्केल ऐसे कि वो कर्व बना दे और कहे बताओ भाई आयरन को लेबल करो. आपको पता होगा कि आयरन जो है मोस्ट स्टेबल है तो पीक पे आता है. फिर कहेगा ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूरेनियम की जगह कौन सी होगी? मार्क यूरेनियम ऑन दिस कर्व एंड फाइंड, इधर वैल्यूज गिवन होंगी, एंड फाइंड्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आप कहोगे अच्छा मैंने चूंकि पीक पे ये बनाया, यू विल टेक द रूलर और द स्केल. वहां से आप देखोगे कि ये डिस्टेंस कितना है, राइट? यू विल मेजर दिस डिस्टेंस. तो
तो यू विल से दिस डिस्टेंस विच इज फॉर आयरन इज हाउ मच, जो भी आएगा, जितने सेंटीमीटर भी आया, लेट्स से यू विल बी सेइंग कि भाई ये 2.5 सेंटीमीटर आया है, तो फिर आप कहोगे कि यूरेनियम जो है उसका तो 235 है, तो ये असल में 56 के लिए इतना आया था ना, न्यूक्लियर नंबर 56 के लिए कितना आया था 2.5, तो फिर ये 235 के लिए कितना होगा x, एंड यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। अब ये फॉर एग्जांपल डाटा मैं बता रहा हूँ, तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे x इंटू 56, 235 इंटू 2.5, और फिर आप 56 को यहाँ ले आओगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको देखो सॉल्व करो क्या आंसर आता है। $470 एंड 570 एंड 587 ओवर 56, देखो तकरीबन 10.49, तो 10.49 या 10.5 आता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब ये 10.5 आएगा तो आप यहाँ रूलर रखोगे और यहाँ से मेजर करोगे यार 10.5 कहाँ पे आता है, राइट। अब ये तो अब बड़ी डायग्राम है ना, आपके पेज पे तो A4 A5 पेज पे तो इतनी बड़ी वो नहीं डायग्राम बनेगी ना, विद इन द पेपर ही होएगी। बहरहाल जितना भी डिस्टेंस यहाँ से होएगा उसका, आप लेट से ये आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे मार्क कर दोगे कि भाई ये यूरेनियम की पोजीशन आ रही है, ये सिंपल थिंग, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन इट, ठीक है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। इट शोज अस, what does it show to us? It shows us the information about binding energy of all the elements, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके न्यूक्लियॉन नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अगर तो ये एक्चुअल ग्राफ होता तो हम अगर देखना चाहते होते कि भाई अगर जिसका एलिमेंट का न्यूक्लियॉन नंबर 100 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ठीक है, 100 तो ज़ाहिर है थोड़ा यहाँ पे इसके करीब ही होएगा इधर, तो यहाँ से आप इधर चले जाते और वहाँ से उधर देख लेते तो आपको पता लग जाता कि इस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो जो रियल टाइम ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस पे भी पूरी वैल्यूज़ होती हैं, वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज़ होती हैं, और आप किसी भी एलिमेंट का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो देख सकते हो, जस्ट द वे जिस तरह आपका पीरियोडिक टेबल होता है, तो किसी भी एलिमेंट का आप न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर, चार्ज नंबर देख सकते हो, तो इसी तरह यहाँ से भी देख सकते हो। अब आप देखो इसमें दो रीजन्स है, एक रीजन ये वाला है, दिस रीजन, ये जो रीजन है इसमें जो आयरन के नेबरिंग जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी स्ट्रॉन्गर है। देखो ये चीज़ इवन ह्यूमंस में नहीं बल्कि एलिमेंट्स में भी ऐसे होती है कि अ मैन इज़ नोन बाय अ कंपनी ही इज़ कीपिंग, जैसी कंपनी होगी बंदा वैसे बन जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना। तो देखो इधर भी ऐसे ही है, आयरन के जो नेबर्स हैं जो उसके साथ साथ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं सारे, राइट। तो ये जो आयरन है इसके साथ जो भी हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी बाकी सबसे ज़्यादा है, राइट। जो उससे दूर हैं उनसे, जो आयरन से जितने दूर होते जा रहे हैं उतनी उनकी बाइंडिंग एनर्जी वीक होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि वेरी लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन as compared to nuclei surrounding iron Fe56। हीलियम जो है, हाइड्रोजन जो है, इसकी भी देखो बाइंडिंग एनर्जी कम है, और अगर आप यूरेनियम की देखो तो इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, राइट। ये यूरेनियम आ रहा है और ये हाइड्रोजन। इसीलिए देखो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में वो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत कम होती हैं। तो यूरेनियम जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिशन में, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम कहें कि आयरन का करो न्यूक्लियर फिशन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर एलिमेंट्स हाइड्रोजन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। दैट्स वाई आप उस हाइड्रोजन के अंदर और न्यूक्लियाई ऐड कर सकते हो। कैसे? 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आते हैं और आपके फ्यूज़ होते हैं, ऐसे ही है ना, H11 H12 आता है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं
कि जो ये है और ये है, चूँकि इनकी बाइंड वेरी लाइट या वेरी हैवी जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, दैट्स वाई दे आर मोस्ट suitable elements for nuclear fission and fusion. So we concluded, so these are most suitable for nuclear fission, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं।